Hello dear students, today Maths Part 2 Exercise 6.4 Solution of Differential Equation, or you can say solution of homogeneous differential equation. Here question first, solve the following differential equations. Now see sub question fifth, x square minus y square into dx plus 2xy into dy equal to 0. It can be written as x square minus y square plus 2x into y into dy upon dx equal to 0, which is homogeneous differential equation. So for the solution of homogeneous differential equation, we check the variables. Here variables are x and y. So we put y equal to vx. Now differentiating with respect to x on both sides, we get derivative of y. So derivative of y is dy upon dx, and for derivative of u into v, here it is v plus x into dv by dx. U into v means using u into v formula, which is multiplication formula for the differentiation. So here v into d by dx of x is 1, that is v into 1 becomes v, plus x multiplied by d by dx of v becomes dv upon dx. So we get the value of dy upon dx is equal to v plus x into dv upon dx. So for the given equation, here it is x square minus y square into dx plus 2xy into dy upon dx equal to 0, 2xy into dy equal to 0. So we should adjust here dx as dy by dx with second term and then put y equal to vx. So we should take here it is equation first, this one is second, and this one is third. Using equations 1, 2 and 3, we get x square here as it is, value of y equal to vx, you can check from here. So this will be v square into x square plus 2x as it is, value of y is vx, and value of dy upon dx from equation third, here it is v plus x into dv upon dx equal to 0. Now we see that x square is common from this bracket, and x into x becomes x square also here. So dividing throughout by x square on both sides, we get 1 minus v square plus 2v into v plus x into dv upon dx equal to 0. Now it is 1 minus v square, we should write here as it is, plus 2v into v, that is 2v square, plus 2v into x dv by dx, that is 2vx dv upon dx equal to 0. Now we should simplify the equations. Here 1 minus v square plus 2v square, that is 1 plus v square, plus 2vx dv by dx as it is equal to 0. Now it can be written as dx upon x plus 2v upon 1 plus v square into dv equal to 0. In case you have any doubt how to convert dx upon x plus 2v upon 1 plus v square into dv, so attention here. First we transfer dx this side. So we get here 1 plus v square into dx plus 2vx into dv equal to 0. Now dividing by x into 1 plus v square on both sides, dividing by x into 1 plus v square on both sides, we get dx upon x plus 2v upon 1 plus v square into dv equal to 0. Now integrating on both sides, we get, after integration we get here integral of dx by x plus integral of 2v upon 1 plus v square into dv equal to 0. So we know that integral of 1 upon x dx is log of mod of x plus integral of 2v upon 1 plus v square is log of mod of 1 plus v square equal to log of c, where c is constant of integration. Here left hand side, in the left hand side all the terms are in logarithms, so we should write here also c as log c.
जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं मेनी टाइम्स, इट इज कंफर्म्ड दैट कि अगर कोई भी इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में सभी टर्म्स लॉग में दिए गए, लॉगरिथमिक फॉर्म में हैं, तो हम रिमेनिंग एक जो सिंगल टर्म हमारा कांस्टेंट आता है c, सो दैट कैन बी रिटन एज log ऑफ c। और इसका इंटीग्रल कंफर्म करने के लिए हियर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज 0 प्लस 2v and 2v present here, 0 plus 2v that is 2v only, 2v present here, तो ये whole integral is of the form f dash x upon fx, जो हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे पास अवेलेबल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सभी प्रॉपर्टी में से एक f dash x upon fx टाइप की प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ऑफ f dash x upon fx into dx equal to log of fx plus c. So using that property we get here log of mod of 1 plus v square. चलो ये बात हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखो log of m प्लस log of n, अगर लॉगरिथम में हमारे पास टू टर्म्स हैं या मोर देन टू टर्म्स हैं और उनके बीच में प्लस साइन आया हुआ है, प्लस की साइन गिवन है, तो हम लोग उनको इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। log m प्लस log n बिकम्स log m इंटू n, दैट इज log ऑफ mod ऑफ x इंटू 1 प्लस v स्क्वायर equal to log of c, where c is constant. So therefore log of mod of x multiplied by 1 plus value of v is y square upon, value of v is y upon x, so v square is y square upon x square, modulus closed, equal to log of c. अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर log ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल टू log ऑफ सेकंड क्वांटिटी, देयरफॉर फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल टू सेकंड क्वांटिटी। तो अब हम लोग यहाँ पर जो टर्म लेने जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो कि log ऑफ दिस टर्म इक्वल टू log ऑफ c, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, eliminating log on both sides. You can't cross these two terms, these two logs, but you can write directly here x into x square plus y square upon x square equal to c. Now one time x cancelled, so remaining x in the denominator taking on the right side, we get x square plus y square equal to c into x, which is solution of differential equation, or you can say solution of homogeneous differential equation. Now see next question, question number 6th. Here it is given that dy upon dx plus x minus 2y upon 2x minus y equal to 0. So let the given equation be equation first here. And it is homogeneous differential equation, so we put y equal to vx. If we put y equal to vx, so we should differentiate it also. So differentiating with respect to x on both sides, we get dy upon dx equal to v plus x dv upon dx. So let it be equation third because here it is second. अब ये तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग देखें, इनका कंपैरिजन करें, तो dy बाई dx की वैल्यू हमें इक्वेशन थर्ड से मिल जाती है एवरीवेयर, और y इक्वल टू vx ये हमें सेकंड जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो जहां पर y है ये दोनों टर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, vx, ये दोनों प्लेस पर। तो 1 मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, जो कि वैल्यू है dy अपॉन dx के लिए, प्लस x माइनस 2vx बिकॉज y इक्वल टू vx, and here it is 2x as it is, value of y vx equal to 0. अब इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, और आराम से सिंप्लीफाई करना है, कोई इसमें फास्ट नहीं जाना है जिससे मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस हियर x इज कॉमन इन द न्यूमरेटर, x कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 2v, और डिनोमिनेटर में भी x कॉमन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस v एंड x गोइंग बाई x, तो इन दोनों टर्म में जो कॉमन x आया वो कैंसिल भी हो गया, तो वी हैव 1 माइनस 2v अपॉन 2 माइनस v इक्वल टू 0. नाउ v प्लस 1 माइनस 2v अपॉन 2 माइनस v, इन दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पर,
तो ये हो गया v इंटू टू माइनस वी प्लस वन माइनस टू वी एंटायर अपॉन टू माइनस वी इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। या अगर माइनस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इधर नहीं लेना चाहते हैं तो यहां पर भी लिख सकते हैं प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो सेम मीनिंग होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किधर भी लिख सकते हो। नाउ v into 2 minus v, that is 2v minus v square plus 1 minus 2v as it is entire upon 2 minus v equal to minus x into dv upon dx. Now plus 2v and minus 2v will be cancelled. We have 1 minus v square upon 2 minus v equal to minus x into dv upon dx. तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, यहां से x अपॉन डी एक्स है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं। नाउ वी हैव डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू dv तो अपनी प्लेस पर है, लेकिन अगर ये टर्म को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो दैट विल बी 2 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर एंड माइनस साइन, दिस माइनस साइन एज इट इज हियर। तो अगले स्टेप में अगर हम लोग ये माइनस साइन को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट हियर v माइनस टू। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v माइनस टू अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी। देखो ये माइनस साइन को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस टू प्लस वी दैट इज v माइनस टू। नाउ सेपरेट इट, इंटीग्रल ऑफ v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी माइनस टू अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी। अब देखो अगर हम लोग डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करते हैं ये हमें मिलता है माइनस टू वी। तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टू वी हो जाएगा, तो माइनस टू से डिवाइड भी करना होगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। मीन्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का टाइप है लेकिन माइनस टू नहीं था, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई माइनस टू यहाँ पर और यहाँ पर माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा, तो हो गया माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस वी स्क्वायर इसके लिए। एंड लास्ट इंटीग्रल ऑफ टू अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, तो माइनस टू एज इट इज हियर 1 upon 2a that is 1 upon 2 into 1 by 2 log of 1 plus v upon 1 minus v plus log of c1। अब इनको हम सिंप्लीफाई करके लेते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हियर इट इज 2 log of mod of x प्लस log of 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि इसको भी हम लोग यहाँ पर ये टर्म को लेफ्ट में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये भी यहाँ भी 2 कट हो गया, यहाँ भी 2 कट हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस टू लॉग 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इक्वल टू 2 लॉग ऑफ c1। नाउ अब ये भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और जो इनको कोफिशिएंट है ये इनके पावर हो जाएंगे बाई लॉग फार्मूला, ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी होल स्क्वायर, और यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वायर, और इसके साथ साथ v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो यहाँ पर v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो वी हैव log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये जो टर्म आया 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ v y अपॉन एक्स, प्लस 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ c1 स्क्वायर, क्योंकि 2 लॉग c1 है तो ये लॉग ऑफ c1 स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो टर्म है हमारे पास इसको यहाँ पर हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिमेनिंग हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंटायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गोइंग बाय एक्स स्क्वायर, सो वी हैव ओनली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दिस ब्रैकेट हियर x इंटू वन दैट इज x प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ भी x माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, तो ये x कट हो जाएगा एंटायर अपॉन करने के बाद, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का टर्म रिमेनिंग होगा इक्वल टू c वेयर log c1 स्क्वायर इज c। ये हमने अज्यूम कर लिया, c1 स्क्वायर कांस्टेंट है तो log c1 स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट, इसको हम एक लेटर से c से डिनोट कर देते हैं।
क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने log जो है यहाँ पर ओनली सी वन स्क्वायर को सी लेना है, तो यहाँ पर log को कट कर सकते हैं क्योंकि log यहाँ पर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर कट कर देते हैं log को। ये बाई मिस्टेक आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये हमने कर दिया यहाँ पर कैंसिल। अब इसके बाद तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू सी। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि अभी पर यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की पॉसिबिलिटीज हैं। तो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हियर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू सी। वन टाइम एक्स माइनस वाई गेट कैंसल्ड, रिमेनिंग टर्म्स आर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये रहा हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर। अगर यहाँ पर हम चाहें तो इस सी को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो सी को अगर हम लोग ये साइड में लिख करके लेते तो यहाँ पर सी इंटू आता, ओके, सी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये जो एक्स माइनस वाई यहाँ पर फ्री टर्म आता, तो हम लोग माइनस वाई को उस साइड ले जा सकते थे और फिर यहाँ पर प्लस वाई इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, तो उस टाइप का भी आंसर बना सकते हैं। तो इट डिपेंड ऑन यू। प्लस सी यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, यू कैन राइट इधर लेफ्ट और राइट, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर देखने में थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो अब चलते हैं हम लोग सेवंथ क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सेवंथ क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाला है, अब इसको देखिए, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमारा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। Put y equal to v into x and differentiating with respect to x on both sides. So dy by dx equal to v plus x into dv upon dx. तो यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे, देखो dy upon dx equal to v plus x dv upon dx. Let it be equation number third. So using equation 1, 2, 3, or we should write here from 1, 2 and 3 we get value of x into dv upon dx becomes x into v plus x dv by dx। देखो ये वैल्यू ऑफ dy by dx यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस y दैट इज vx, क्योंकि y की वैल्यू है v इंटू एक्स, प्लस x एज इट इज हियर वैल्यू ऑफ साइन y अपॉन x, तो ये है वैल्यू ऑफ v दैट इज साइन v इक्वल टू 0। Now to open the bracket here, x into v, vx, x into x, x square into dv by dx minus vx plus x sin v equal to 0। अब इस इक्वेशन को हमें करना है सिंप्लीफाई। ये पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो प्लस vx एंड माइनस vx विल बी कैंसल्ड, तो रिमेनिंग टर्म्स विल बी एक्स स्क्वायर इंटू dv by dx प्लस x इंटू साइन v इक्वल टू 0। नाउ डिवाइडिंग बाई x वी हैव, अगर हम लोग डिवाइड बाई x करते हैं तो क्या मिलेगा, वन टाइम x रिमेनिंग और a x कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस साइन v इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको लिखना है, तो साइन v और x से हम लोग डिवाइड करते हैं और dx को यहाँ पर ले लेते हैं, तो वी गेट dv अपॉन साइन v, dv अपॉन साइन v प्लस इंटीग्रल dx अपॉन x इक्वल टू 0। सबसे मेन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ dv अपॉन साइन v प्लस इंटीग्रल dx अपॉन x इक्वल टू 0, और 1 अपॉन साइन v होता है कोसेक v, तो इंटीग्रल ऑफ कोसेक v, क्योंकि हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करते हुए इंटीग्रेट भी यहाँ कर दिया, तो इंटीग्रल ऑफ कोसेक v dv प्लस इंटीग्रल ऑफ dx by x इक्वल टू 0। Now formula for integral of cosec v dv, that is log of mod of cosec v minus cot of v plus log of mod of x for this term equal to log of c। अब इनको हम क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में है प्लस साइन, तो इनको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो log of x into cosec v that is y upon x minus cot v that is y upon x equal to log of c। तो log log एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर x इंटू
और कोसेक y अपॉन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन y अपॉन एक्स माइनस कॉस y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स, जो कि फार्मूला है कॉट y अपॉन एक्स के लिए, इक्वल टू c। तो साइन y अपॉन एक्स कॉमन फ्रॉम बोथ द डिनोमिनेटर्स, वी हैव x into 1 minus cos of y upon x equal to c into sin of y upon x। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, मीन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इजिली यू कैन गेट द सोल्यूशन। फिर से एक बार मैं यहाँ पर आंसर को रिपीट करता हूँ, सभी स्टूडेंट यहाँ पर चेक कर लें। x इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू c इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर आया है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई into 1 minus x upon y into dy equal to 0। तो here everywhere x upon y x upon y x upon y, तो इस बार हम लोग dx को यहां न ला करके इसको उधर लेके जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा dx upon dy, मीन्स इस इक्वेशन में क्या करना है, dy को यहां पर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। एंड देन अब हम लोग जो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है कि x इक्वल टू वी वाई, एक्स इक्वल टू वी वाई, नॉट y इक्वल टू वी एक्स, एक्स इक्वल टू वी वाई, ऐसा अगर पुट करेंगे तो सोल्यूशन आएगा। और इसी टाइप का सोल्यूशन सेम ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट क्वेश्चन सब क्वेश्चन फोर्थ, जो कि हमने अभी अपने प्रीवियस वीडियो में, जस्ट प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया हुआ है। तो वहां पर सिर्फ यहाँ 2 लिखा हुआ है, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है, सेम नंबर्स हैं, सेम टर्म्स हैं, सब्स्टिट्यूशन सिमिलर है, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर 2 है। तो इसके लिए हमारे सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 रेफर करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक को क्लिक करके इमीडिएट क्वेश्चन 4 पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 वहां पर इजिली मिल जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस यू हैव एनी डाउट फॉर द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, तो मुझे कमेंट करोगे तो मैं अपने अगले वीडियो में इसको प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो किसी सिंगल स्टूडेंट के लिए है या मेनी स्टूडेंट के लिए है, बट यू विल गेट द सोल्यूशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया है कि रेफर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सब क्वेश्चन 4 और सी द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये दोनों चीजें चेक कर सकते हो, कोई भी, या तो क्वेश्चन नंबर 4 रेफर करो, गो टू द प्रीवियस वीडियो, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करते ही क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा सामने उस वीडियो में, और वहां पर रेफर करके इसको क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड 4 काफी क्लोज हैं, एकदम मिलते जुलते हैं, सिर्फ और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, बस इतना डिफरेंस है, तो थोड़ा सा आंसर में चेंजेस होगा। तो इतना यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। इसके अलावा अगर स्टूडेंट को समझने में, प्रैक्टिस करने में कहीं पर भी कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अलावा इन केस अगर यहाँ पर कोई भी अदर टॉपिक में डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल्स, या डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, या अदर चैप्टर्स, मैट्रिसेस, कॉनिक सेक्शंस, जो भी स्टूडेंट अभी प्रीवियस ईयर्स में नहीं पढ़े हैं कॉनिक सेक्शन, सर्कल, या वो सब में कोई भी डाउट है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। या कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन इमीडिएट पाना है तो हमें क्लिक करके, लेटेस्ट वीडियो में क्लिक करके बताएंगे, तो वहां पर इमीडिएट सोल्यूशन भी मिल सकता है।
और अभी जैसा कि जेईई एंड सीईटी के एग्ज़ाम अब धीरे धीरे नज़दीक आ चुके हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो अभी आफ्टर फ्यू वीडियोस या आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट को हमारे जेईई एंड सीईटी के क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, मिलने वाले हैं। तो कंटिन्यूअस वीडियो को ऑब्जर्व करते रहें और चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहें। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं तो वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन स्टूडेंट को इमीडिएटली मिलती रहेगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस का सलूशन पाने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।